Today we start with the list. Let's say these are the concept that we have covered last time. हमने ये concept last time देखे थे. Just quickly into our three slides I review the previous that we have studied related to the list. We have seen we can declare a single variable with some uh, uh, name, that is valid name, variable name, and we can make a list. This list is called in other languages as array. So we are using both name as synonym, but there is difference between the list and arrays. First difference that you can see is that arrays can hold only the related type of data, but here in Python, list can hold different type of data. So list can be extended at runtime and can contain any number of records. uh, we can add numbers into the list, we can add integer into the floating values into the list, and we can add strings as well, or we can add the combination of these values. तो ये list का जो last time we have seen, and for record I am using this slide from the IBM developer network. This is the skills network, and these are very good slides. So I thought के ये topic जो है इससे cover किया जाए, because I am teaching that in my data science class, the same slides. So these are very good slides जो comprehensively cover करती हैं, तो उसको हम use कर रहे हैं. तो सामा जब हम अपलोड करेंगे तो काइंडली ना क्रेडिट ऐड कर दीजिएगा कि ये हमने स्लाइड्स IBM डेवलपर नेटवर्क की यूज की. अच्छा, we know we can access individual element of the list through the index numbering. This is the index numbering. ये 0, 1, 2. अगर we will write on L0, then it means we are printing Michael Jackson. And if we write on L1, it means we are accessing the 10.1. तो ये corresponding जो values हैं into the list we can access through their index number. अब उसी तरह Python में there is an additional thing that we can use the negative indexing as well. ये C sharp या Java में नहीं है, but Python allow us to use negative indexing. वो last जो value है, it give negative -1 to the last value. तो अगर हम लिखें L-1, तो it means कि we are asking to Python to give us the last value of the list. तो समटाइम हमें लास्ट से आइटरेट करना पड़ता है, तो फिर हम ये नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं. तो इट इज वेरी मच यूजफुल व्हेन वी परफॉर्म डेटा साइंस टास्क, और वी एक्चुअली वी हैव टू सर्च फ्रॉम विद इन दी लिस्ट. जब भी हमें रिसर्च लिस्ट में से रिसर्च कर कुछ चीज फाइंड करनी होती है, कोई चीज सर्च करनी होती है, देन दिस इज द वेरी यूजफुल. तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इज सपोर्टेड इन द पाइथन लिस्ट. तो इसमें हम जो है वो यूज कर सकते हैं. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द नेगेटिव इंडेक्सिंग. Similarly, इस तरह there is another concept of list slicing that is very much used in a higher type of retrieval from the list. जब भी हमने लिस्ट पे से कोई ज्यादा इन डेप्थ डेटा फाइंड करना होता है, तो we mostly use slicing, और it is the fundamental concept of the पाइथन एडवांस डाटा स्ट्रक्चर. बिकॉज अब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी अब पाइथन शुरू होने में लगी है. पहले ही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने मॉड्यूल्स पढ़े हैं, क्लासेस पढ़ी हैं, दैट इज समहाउ सिमिलर टू दी C++, और मे बी देयर आर सम डिफरेंस इन सिंटैक्स, बट कॉन्सेप्ट वर सिमिलर. लेकिन अब जो चीजें हैं वो मोस्टली जो है ना वो पाइथन में सपोर्टेड है, दैट दोज आर नॉट सपोर्टेड इन दी अदर लैंग्वेजेस. लाइक स्लाइसिंग में हम ये कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द लिस्ट यूजिंग दी this indexing technique. हम जिस तरह हमें पता है कि we was if I want to access the any index, then I will mention L1, तो it will access this part 10.1. लेकिन अगर if I want to access uh, uh, the part of the list, then I can mention the range in these terms. 3:5 means कि 3 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक एक्सेस करो, तो ये इट विल रिटर्न अस दिस पार्ट ऑफ द लिस्ट. तो ये जब हम 3, 4
:5 लिखेंगे तो एक्चुअली 3 4 तक ये रिटर्न करेगा। वो ऐसे ही है कि जैसे आपको याद हो कि व्हेन वी राइट ऑन रेंज और 0 5 1, तो एक्चुअली जब हम 5 लिखते हैं तो पाइथन क्या करती है, वो 4 तक इंडेक्सिंग जनरेट करती है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 या 4। तो ये पाइथन का जो है ये प्रोग्रामिंग में आसानी के लिए, एंड मे बी you will realize when you will write down more code in Python, then this approach is very much useful because जो array length है वो एक n-1 तक जाती है। तो बहरहाल पाइथन में जब भी हम लास्ट इंडेक्स मेंशन करते हैं तो वो n माइनस जो 5 मेंशन करेंगे, इट मींस इट विल गोज अप टू द 4। तो यहाँ पे 3:5 का मतलब है कि 3 भी और 4 भी रिटर्न कर। Similarly, if I want to access pick first and second, then I will mention L1 इंडेक्स से लेकर मुझे 3 तक रिटर्न कर लो। तो पोटेंशियली व्हाट आई एम सेइंग मुझे 1 और 2 कर दो। तो ये पाइथन का जो है वो स्टाइल है, एंड इट विल हेल्प अस टू break the list, or we can find the subset of the list through this approach. बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपको करना है तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा और उस इंडेक्स पे इफ लगाना पड़ेगा। अगर इफ आता है तो फिर आप उसमें अरे में ऐड करते जाएं। तो पाइथन में it is much easier to slice a list from anywhere, जैसे मर्जी करते हैं। Even you can give here negative indexing as well, like if I say कि L -4 to -3, तो इट मींस आई एम आस्किंग पाइथन गिव मी द वैल्यू -3, सॉरी -2 कर लें अगर, -4 एंड -3, तो मींस के ये दोनों मुझे इस लास्ट से मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक्स हैं कि हमें स्लाइसिंग करें, स्पेशली व्हेन वी विल सी के एडवांस फॉर्म ऑफ द टू डायमेंशनल लिस्ट, दोज आर कॉल्ड द डाटा फ्रेम। तो उसमें फिर आपको ये बड़ी आसानी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप जो है वो प्रैक्टिस करके डिफरेंट ऑप्शंस के साथ यू कैन ट्राई। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे पाइथन लिस्ट जो है वो काफी जेनेरिक है। लाइक इफ आई हैव a list L and which has some values, and I want to add some another list into this one, then Python combine both of the list into the third one. For example, L plus another list will give us this a new list which consists of the all the element of the both one. सो इस तरह हम जो है पाइथन की लिस्ट को कंबाइन या मर्ज कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में अगर अरेज को आपने मर्ज करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन ए कोड for it. लेकिन पाइथन के लिए just you can use the plus operator to add to list and get third one. इसी तरह जो है we have another function extend. Extend means similarly as we are doing the plus with the plus operator, same work will can be done with the extend function. Extend function actually extend this list with this one. It will add the element of this list into the here into a previous one. So इस तरह वो कर देगा सेम काम जो हमने प्लस करके किया था, we can do with the extend function. अच्छा जी, एक थोड़ा-सा डिफरेंस याद रखिएगा। वो एक्चुअली देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन मैनी पीपल व्हेन दे यूज़ confused with extend with the append. Append means ये होता है कि we are adding one एलिमेंट इनटू द लिस्ट। तो उसमें हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं लिस्ट में। तो जब अगर हम इफ यू वी यूज अपेंड here and list, then actually ये complete list will be added as an element। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एक एलिमेंट के तौर पर इसमें ऐड होगी, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी ऐड हो सकती है। लिस्ट के अंदर जिस तरह यहाँ पे we have already added in the string, we added the float values, here it is the year, or you can say it is the integer value. So when we will append this, then it will add as a complete list as a one element at index number, it is 1 0 1 2 at index number 3. So it will add as a complete list. It will not be added as a individual elements। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं इसमें जाएंगे, जिस तरह एक्सटेंड के केस के अंदर हमने देखा है वहां पे इंडिविजुअल एलिमेंट वो गया था 3 पे पॉप गया था और 4 पे गया था 10। इस पे अब 3 पे पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो ऐड होगी।
तो लाइक अगर अब मैं इसको एक्सेस करूं, आई विल राइट डाउन L3, तो ये मुझे पूरी एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो इटसेल्फ जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अपेंड और एक्सटेंड। अगर आप लिस्ट्स को कंबाइन करना चाहते हैं, देन आइदर यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर और यू कैन यूज द एक्सटेंड फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट एज ए लिस्ट ऐड हो जाए एग्जिस्टिंग लिस्ट में, तो हम फिर अपेंड यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इन मैनी programming task we need to add list within the list. In that case we use the append, and if we want to add the individual elements within the list, then we can use the extend function. So this is the difference between the extend and append. तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे भी इसका एक और चीज जो मेरे ज़हन में आ रही है कि इफ यू राइट ऑन L3 एंड आई राइट ऑन 0, तो एक्चुअली इट विल रिटर्न पॉप बैक टू अस कि L3 और 0, तो ये हमें पॉप जो है वो रिटर्न करेगा। अच्छा जी, here is the examples that we have talked about related to the extend and append. So we continue to the third one. अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट बात है जो लास्ट टाइम भी शायद हमने डिस्कस की थी, वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, लाइक हियर a, we are here, it is a list, and we can use a0 and hard rock, तो it will change value. तो मे बी आपके ज़हन में आ रहा हो, this is the very common concept that actually we use most frequently in C++. लेकिन इसके पीछे एक साइंस है, ये हम क्यों स्पेसिफिकली बता रहे हैं, बिकॉज पाइथन के अंदर ना, जो शायद लास्ट टाइम हम डिस्कस नहीं कर सके, देयर इज ए वन इशू, and that is, let's say we have a variable s. Here we have written let's say park, and I want to change s0 is equal to talk t. I want to change it with the t. अगर मैं ये करूंगा तो एक्चुअली पाइथन विल गिव मी एरर। वो अब एरर क्यों नहीं आना चाहिए, वो क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था स्ट्रिंग वर्क एज एन अरे। लाइक अगर मैं करूँ ना, यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट और मैं लिखूं s0, तो इट विल प्रिंट p ऑन द स्क्रीन। मतलब कि आई कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग विद द इंडेक्स नंबर। तो मैं इंडेक्स नंबर से इंडिविजुअल एलिमेंट तो एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको फिर क्या मसला है कि वो ये चीज नहीं मुझे करने दे रहा। तो जब मैं इसको करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, वो कहेगा कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड दे कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम, सम काइंड ऑफ मैसेज विल बी अपीयर ऑन द कंसोल। तो एक बात याद रखनी है कि पाइथन में देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, वन आर कॉल्ड द म्यूटेबल and other is called the immutable. म्यूटेबल मतलब कि आप सबने वो अवेंजर्स या वो मार्वल्स की मूवी देखी होगी जिसमें एक्समैन है, तो म्यूटेशंस जो होती हैं मींस के कोई चीज नॉर्मल बिहेवियर से अपन चेंज हो सकती है। तो म्यूटेबल यूजुअली वी यूज टर्म फॉर that can be changed. Immutable are things that those cannot be changed. Once they are made, there cannot be more changes. Cannot we cannot make any more changes into it. So mutable में हम चेंज कर सकते हैं। पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं और बहुत सारी दूसरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अभी शायद हमने नहीं पढ़े, वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब है पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर इम्यूटेबल है, एक दफा हमने डिफाइन कर दिया, वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इनटू इट। अच्छा, अब इसका तरीकाकार है, हम कैसे चेंज करेंगे, दैट इज ए सेपरेट टॉपिक, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह पाइथन में कुछ डेटा स्ट्रक्चर है, दोज आर म्यूटेबल, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक हियर लिस्ट इज द म्यूटेबल, तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट के इंडेक्स 0 पे कोई चीज है तो वी विल चेंज ऑन द रन टाइम। लेकिन अगर स्ट्रिंग का हमने डिफाइन कर दी, देन वी कैन नॉट चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। तो ये आपने ज़हन में रखनी है ये बात। तो इसलिए दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट कि हम लिस्ट के अंदर जो है वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप यू वांट टू डिलीट सम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, देन यू कैन यूज द del फंक्शन। आपके ये डिलीट करना है, मैंने ये वाली वैल्यू
ए जीरो पे जो है वो इंडेक्स मैंने डिलीट करना लिस्ट में, देन लिस्ट विल this value will be removed from the list and we will get the new list that will not have this corresponding value into it. तो इस तरह आप लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं कोई वैल्यू, क्योंकि यूजुअली वी परफॉर्म दी CRUD ऑपरेशंस जिसमें हम क्रिएट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो ये ऑपरेशंस हमें डाटा के ऊपर करने पड़ते हैं। जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी डाटा, देन वी हैव टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन, यानी कि डाटा को लिस्ट में ऐड भी करना है, डाटा को लिस्ट में से निकालना भी है, डाटा को लिस्ट में से अपडेट भी करना है और डाटा को डिलीट भी करना है। तो दिस इज द वेरी कॉमन टास्क इन एनी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम या एनी बिजनेस एप्लीकेशन वेयर वी हैव टू परफॉर्म क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम वी कैन डिलीट एनी वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट एज वेल। अच्छा जी, आप कोई भी वैल्यू लिस्ट में से डिलीट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन with reference to list. We have another operations available. We can divide, break our any string into the list. When we write on string and we will mention dot split, it will divide the string based on the spaces. Like if I have written down this is my laptop, तो ये क्या करेगा, मैं इस स्ट्रिंग को डॉट स्प्लिट कर दूं तो इट विल divide string based on the species, or it will make a separate list here which will consist of this or is comma my and laptop. तो ये we can divide or break the string based on space using the split function. तो इस केस में hard space rock, actually it will return us a list which consists of hard and space rock, तो ये एक वो लिस्ट बना देगा। तो बाद में आप इसके ऊपर लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसमें से ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई खास वर्ड कितनी दफ़ा है, तो यूजुअली जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोई टास्क करते हैं तो दिस इज वेरी कॉमन ऑपरेशन। सिमिलरली लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट के फंक्शन में वी कैन पास ए पैरामीटर, we can pass, okay, by default its behavior is it will divide or break the string based on the space. If we want के let's say कि हमारे पास कोमाज हैं, यानी कि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं इस तरह लिखी हुई हैं x1 हैश x2 हैश x3, तो मैं चाहता हूँ हैश के बाद जो भी चीज आती है तो वो उसकी एक लिस्ट बन जाए और हैश को खत्म हो जाए और लिस्ट बन जाए। तो फिर मैं इधर पैरामीटर में बताऊंगा कि अब आपने स्ट्रिंग जो डिवाइड करनी है, divide it based on the hash mark. So it will divide the string based on hash mark and it will return us the a list value that will consist of all elements those are before the hash mark. तो इस तरह जो है वो काम करता है। लेट्स से इधर एक एग्जांपल भी गिवन है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डॉट स्प्लिट, और इधर हमने कोमा की बेस पे से स्प्लिट किया है, तो एक्चुअली वी विल गेट ए बी सी एंड डी, ये एक स्ट्रिंग की शक्ल की जो हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह वी कैन डिवाइड अवर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज एज वेल, चाहे वो कोमा सेपरेटेड हो, किसी भी डेलीमीटर से सेपरेट हुई हो, वी कैन पास दैट कोमा पास कर दें, हैश मार्क हो तो हैश मार्क से भी, या कोई भी चीजों से जो इंडिविजुअल कैरेक्टर से सेपरेट हैं, तो वी कैन ब्रेक और स्प्लिट द लिस्ट इनटू स्ट्रिंग इनटू द लिस्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पे एलियासिंग is another concept. This is a very common mistakes that we do when we start programming with the Python, and I have done a lot of mistake due to this concept. Like we have a list A which consists of three elements, and we assign A to B. तो अब if we make any change into B, it will appear in A as well, because ये इसको ना जो लिस्ट है वो मेमोरी में एक बनती है। अब ए बी दोनों उस मेमोरी में लिस्ट को रेफरेंस करें। इफ आई मेक एनी चेंज इनटू द बी, दैट विल बी सीन बाय ए, एंड इफ ए मेक एनी चेंज इनटू द लिस्ट, देन इट विल बी सीन बाय द बी। सो ये दोनों अब मिलकर एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। लाइक अब इफ यू मेक ए थर्ड वन एज वेल सी इज इक्वल टू बी, तो फिर वो तीनों लिस्ट
एक ही को पॉइंट आउट करेंगी, तो जो भी जिसमें भी चेंज करेगा दूसरे को नज़र आ रहा होगा। तो ये शुरू-शुरू में जब हम पाइथन के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं कि वी थॉट कि लिस्ट जो है वो बाय वैल्यू पास होती है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली बाय रेफरेंस। मीन्स कि वो एक ही जगह पे तमाम उसी को पॉइंट कर रही होती हैं। तो इफ वी मेक एनी चेंज इन वन लिस्ट, देन अनदर लिस्ट विल आल्सो सी दैट, कि अगर हम इसमें बनाना कर देते हैं A0 को, तो ये एक्चुअली अब बी भी उसी को देख रहा है। बी अगर प्रिंट करेगा B0, देन इट विल सी बनाना ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स से इफ वी वांट टू मेक ए प्रॉपर क्लोन, नॉट एलियस। एलियस का मतलब है कि उसी का हम नेम, एक ही लिस्ट है उसी का, एक इक्विवेलेंट नेम जो है वो हमने जो है ना वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे if we want to create a clone itself of rather than alias, then we use the this term colon here, b colon. So or other way around, b is equal to a colon. No, actually b will become a clone. B means it will become the separate लिस्ट इनटू द मेमोरी। तो वो जब हम इस तरह असाइनमेंट करते हैं कॉलन के साथ, तो एक्चुअली वो पूरी की पूरी एक सेपरेट जो है वो लिस्ट बन जाती है। एंड नो, इफ आई चेंज बी जीरो और ए जीरो इज इक्वल टू बनाना, देन अदर लिस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। और दूसरी लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो अपनी लिस्ट को रेफर कर रहा है और वो अपनी को रेफर कर रहा है। इफ आई मेक एनी चेंज हियर, देन इट विल नॉट बी visible for the other array. So this is how we clone the list. जब भी आपने clone करना हो and you want के this should be a separate list, if I make changes into this and the second list, then it will not be paired for the first one, then you have to copy the list through this in this way. तो ये एक जो है वो तरीका है। अच्छा बच्चों, अभी दूसरा जो चीज़ है जो हमने देखनी थी 2000 थी, these were some more important topic related to the list. We have seen how to what is different between the aliases and clone, how to slice the list, and how to delete values from the list, how to append and extend. What is different between the append and extend? So mutable or and immutable, difference between the mutable and mutable types. So though now we are moving to the second part, and that is the list comprehensions. List comprehensions are a very powerful concept in the Python, and it actually it is the way to write a compact and concise code. बड़ा छोटा और concisely हम जो 4-5 लाइन्स में कोड लिखते हैं, we can write it in the one single line. तो वो कैसे है जरा क्विकली देखते हैं। ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, and you can gradually learn by doing examples and practice, make write more code. So let's say we have a program to write that create a new list of squares based on a given one. हमें कोई एक लिस्ट दी हो और हमें कोई कहे कि इस लिस्ट के ना एक स्क्वेयर्स बनाएं और स्क्वेयर्स बना के एक नई लिस्ट में डाल दें। तो यू कैन थिंक कि इसको अगर हमने पाइथन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Maybe we have to write a loop which iterate each element of the array, or whenever we encounter that element, we take square of it and we append it into the another लिस्ट जो हमने स्क्वेयर्स की एक सेपरेट बनाई हो, तो वो उसके स्क्वेयर बनाता जाएगा। तो दिस इज द सिंपल वे दैट यू कैन डू इट। मे बी यू कैन ट्राई इट आफ्टर द लेक्चर कि आप सिंपल लूप के साथ इसे कैसे करें। तो मैं अभी आपको उसका शॉर्टली कोड दिखा देता हूँ। तो दिस इज द कोड दैट वी कैन राइट इट डाउन। लाइक वी हैव नंबर्स लिस्ट, वी हैव स्क्वेयर्स लिस्ट दैट इज इनिशियली ब्लैंक। हम लूप चलाते हैं फॉर IDX इन रेंज, क्योंकि हर इंडेक्स की वैल्यू को ट्राइवर्स करना है और उसका करना है, तो मुझे तमाम IDX की वैल्यूज चाहिए। आई विल स्टार्ट विद 0 and I will take the length numbers कि जितनी length is a function that will return me the total length of the array, और इसकी array की length जो है वो जितनी भी है वो मुझे return कर देगा। In this case we have 10, और उसके बाद हर एक में वो एक का इंक्रीमेंट करे। तो ये अब इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 to 9 तक जो है वो चलती रहेंगी। अब शायद
you can appreciate the Python way that if I write down 10, it automatically generate indexing till 9. अदरवाइज अगर मैं सी प्लस प्लस में हूँ तो मुझे खुद मैनुअली इधर -1 करना पड़ता है। तो इसी वजह से पाइथन जो दूसरा इंडेक्स जहां तक जनरेट करना होता है उसको एक वैल्यू लेस तक जनरेट करता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे जब हम स्लाइसिंग की बात कर रहे थे। तो बहरहाल this loop will execute, and what we are doing here, we are accessing the element of each इंडेक्स वन बाय वन। मतलब पहले इसकी वैल्यू 0 होगी तो इधर 0 आ जाएगा, नंबर 0 का स्क्वायर ये फाइंड करेगा। पाइथन में स्क्वायर के लिए जो ऑपरेटर है वो पावर के लिए जो ऑपरेटर है वो डबल स्टैटिक लिखें तो जो इसके बाद जो चीज आती है वो असल में उसकी पावर बन जाएगा। लाइक 0 है तो ये समय इसका मतलब है 0 स्क्वायर है, अगर 1 है तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अदर वे अराउंड इज कि आप ये ऑपरेटर नहीं यूज करना चाहते, देन दैट इज द सिंपल, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर ही लेना है तो हम आईडीएक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर आईडीएक्स लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्क्वायर। तो इट इज द वे हाउ यू वांट टू यूज इट, बट इन पाइथन वी हैव a double static for the power. It is called the power operator. अच्छा, ये और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, इट विल फाइंड द exponent of square of number, and we are going to store it into the SQA. We are taking a variable here, and then we add this variable into the this squares list, and squares dot append SQ, it will add this into the this list. First time when 0, we are going to take it square, we get the 0, we are putting here in this list, this will become 0. Second time it 1, again 1 square is 1, it will come here, then 2 square is 4, and it will be adding into the this list. तो ये इस तरह इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। जब सारा फॉर का लूप चल जाएगा, at the end we are printing the squares, complete list of the squares will be shown on the screen. तो ये print का फंक्शन हमें ये शो कर देगा। So this is the regular way that we use to write the our program. We can make this program more concise and compact using in this way. Python में ये भी है कि हम यूजुअली हम इंडेक्स के थ्रू हम इसलिए काम करते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस हमें ना इंडेक्सिंग के नंबर के थ्रू ही वैल्यूज एक्सेस करने देती हैं। तो उन लैंग्वेजेस में कोई लूप है, फॉर ईच लूप है या इस तरह का लूप है, लेकिन वैसे यूजुअली वी वर्क यूजिंग द इंडेक्स आईडीएक्स वैल्यू। सो इन पाइथन सेम टास्क कैन बी अचीव्ड इन दिस वे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लिखें फॉर एन इन नंबर्स, और ये एन जो है ये क्या करेगा, अब हम इंडेक्स के थ्रू नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं एन नंबर्स में एन के लिए बारी बारी एग्जीक्यूट करो, और यहाँ पे हर नंबर के लिए इट विल iterate these number of lines. So like अब क्या होगा, 0, for 0 it will take square of it and it will append it. For 1, then again for 1 it will take square of it and it will append it. For 2 it will take square of it and then it will append it. So वो जो आईडीएक्स के थ्रू हम काम कर रहे थे उसको हमने ज्यादा सिंपल वे से और कम्पैक्ट वे से हमने लिख दिया है, और वो दैट इज द मोर, दिस कोड इज द मोर कम्पैक्ट एंड मोर रीडेबल। ये ज्यादा जो है वो रीडेबल है और ज्यादा जो है वो जो है वो कम्पैक्ट है। तो दिस इज द वे, बट एक्चुअली वी कॉल इट, दिस इज नॉट पाइथन वे। तो यही काम आपने करना हो तो ये पाइथन का तरीका का नहीं है। मे बी यू कैन से इट इज ए गुड गुड प्रैक्टिस देन प्रीवियस वन, बट इट इज नॉट द पाइथन वे। पाइथन में अगर ये काम करना हो देन दी सिंपल वे इज कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड वी कैन राइट ए सिंपल कोड इन दिस वे। वो असल में अगर आप नोट करें ये कोड और वो कोड बिल्कुल सेम है, लेकिन वी हैव रिटन इट इन दी सिंगल लाइन। वो कैसे, हमने कहा स्क्वेयर्स की एक लिस्ट बना दो। पाइथन पाइथन को कह रहे हैं कि पाइथन मेक ए लिस्ट ऑफ स्क्वेयर्स, एन का आपने स्क्वेयर लेना है और किन एन का लेना है वो आगे हम बता रहे हैं। हम कह रहे हैं फॉर एन इन नंबर्स, उन तमाम एन का स्क्वेयर लेना है जो नंबर्स में की लिस्ट में है। तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद वो बारी बारी इन नंबर्स को आइटरेट करेगा, उनका स्क्वेयर लेता जाएगा और लिस्ट में ऐड करता जाएगा, और फाइनली हमारे पास उन तमाम स्क्वेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो तीनों प्रोग्राम हमने देखे हैं, ये तीनों प्रोग्राम की जो फाइनल आउटपुट होगी दैट विल बी 100% सेम। लेकिन ये जो कोड है, ये कोड बड़ा कम्पैक्ट है,
रीडेबल है, और ये भी कहा जाता है, पाइथन कम्युनिटी ये कहती है कि दिस इज द फास्टर वे टू आइटरेट विद इन द लिस्ट। लिस्ट कंप्रेंशन इज द फास्टेस्ट वे टू, इफ यू वांट टू आइटरेट द लिस्ट। तो अगर आप इस तरह काम करेंगे तो ये तेज भी है, ये कम्पैक्ट भी है, और ये ज्यादा एलिगेंट भी है। तो दिस इज द पाइथन वे, ये पाइथन का तरीकाकार है अगर आप पाइथन में जो है वो कोड लिखते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लिस्ट कंप्रेंशन का करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। और इसी तरह हम, let's say we have a list of numbers, and we want to uh, uh, extend this list, we want to separate even number from the list। तो हम इसमें से ना, लिस्ट में से इवन नंबर्स को जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं। तो आई गिव यू 1 or 2 minutes, then you can imagine, or you can write down the code for yourself, then I will give you the solution। तो कोशिश करें कि आप इसको लिख लें ज़रा। अच्छा बच्चों, नो, वी सी द सॉल्यूशन ऑफ इट। अब इशू ये है कि इस लिस्ट से हमने अगर जनरेट करना है तो फिर हम कैसे करें? लेट्स से हम ट्राई करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इवन इज इक्वल टू। अब इस लिस्ट में हमने करना है, हम किन, सबसे पहले तो वी हैव टू ट्राइवर्स ईच नंबर हियर एन। अब तमाम लिस्ट होगी एन नंबर्स की, लेकिन कौन से एन की उसको बताना पड़ेगा। फॉर एन इन नंबर्स, तो अगर मैं इतना कोड लिखूंगा तो क्या होगा, ये सारे नंबर्स असल में इसमें आ जाएंगे, इवन की लिस्ट में 41 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। लेकिन वी नो कि वी हैव टू ओनली enter even number into this list। It means कि I have to add the condition here। तो so I can add condition here using if। मैं इसी लिस्ट के अंदर if लिख सकता हूँ, if n मॉडुलस 2, ये एक्चुअली मुझे रिटर्न करेगा, अगर इवन नंबर हुआ तो इट विल रिटर्न मी 0 वैल्यू। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर जो है ना ये n की लिस्ट बन जाए। तो इन दिस वे आई कैन राइट ए कोड। अदरवाइज यू कैन इमेजिन, आपको फॉर का लूप लगाएं और फिर एफ इफ लगाएं फिर अपेंड करें। तो दिस इज द मोर कॉम्पैक्ट वे, एंड इट इज द पाइथन वे। तो ये तरीकाकार है, हम अगर पाइथन में यही काम करना चाहते हैं कि इवेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। इसी तरह आप इसके अंदर डबल नेस्टेड लूप भी लगा सकते हैं, इफ की के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, एंड और जो है नेस्टेड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो इट्स बेटर टू राइट ए कोड यूजिंग द अपेंड rather than writing in this way। लेकिन अगर आप कोई सेपरेट करना चाहते हैं, या कोई नंबर फाइंड करना चाहते हैं, या कोई नेम्स को सेपरेट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, देन लिस्ट कंप्रिहेंशन आर द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो हर चीज का सोल्यूशन लिस्ट कंप्रिहेंशन नहीं हो सकता, लेकिन ऑफ कोर्स वेयर एवर वी कैन यूज इट, वी शुड यूज इट। तो जहाँ कहीं कहीं पे पॉसिबल है तो लिस्ट comprehension is the more readable way, and it is the actually Python way। So these were the related to the this was the another program that we have not discussed, so because we have not discussed tuple in detail, so I am skipping it। Maybe we should remove it from the slides as well। अच्छा बच्चों, पाइथन में लिस्ट के अलावा देयर इज अनदर डाटा स्ट्रक्चर, एंड इट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। एक्चुअली जितना भी एडवांस काम है, जो अगला जो हमारा कोर्स स्टार्ट होना है उसके अंदर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज द डाटा फ्रेम। एंड डाटा फ्रेम एक्चुअली इज extracted from the dictionaries। So there is another data structure, a part of the list, or you can say an extension of the list, that is called the dictionaries। Dictionary list ही की होती है, लेकिन it is actually enhance the functionality of the list। तो वो लिस्ट की फंक्शनैलिटी को enhance कर देता है। तो डिक्शनरी आर वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ज्यादा डाटा
जब हमने प्रोसेस करना होता है, रिट्रीव करना होता है, इंसर्ट करना होता है, रियल टाइम एक्चुअली उसमें बड़ी जो है ना वो इफेक्टिवली ये इस्तेमाल होता है। तो वी सी व्हाट आर द डिक्शनरीज एंड हाउ कैन वी यूज इट, और फिर उसके बाद एक दो चीजें और आपसे डिस्कस करनी है। लिस्ट के अंदर जब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो दे एडेड इन दिस वे कि ना वो एलिमेंट ऐड होते रहते हैं, और हर एलिमेंट को वी कैन एक्सेस इट थ्रू द इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन रियल लाइफ लाइक मेरी क्लास में स्टूडेंट है, तो मैं एक्चुअली वी डू नॉट नंबर अवर स्टूडेंट कि 0 नंबर का स्टूडेंट है, ये 1 का है। वी एक्चुअली रिकॉल देम फ्रॉम देयर नेम्स और फ्रॉम देयर रोल नंबर्स। तो अब मैं ये याद रखूँ कि ये सीट नंबर 1 पे बैठता है, ये 2 पे बैठता है, ये 3 पे बैठता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक तो देयर ऑर्डर विल शफल, एंड सेकंडली इट इज़ डिफिकल्ट कि मैं लोगों को नंबरों से या किसी भी डाटा को नंबरों से मैं याद रखूँ। तो यूजुअली we want some kind of list type of way to store information, but we can retrieve it based on the some kind of name. तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जब हम कहते हैं तो ये लिस्ट डिक्शनरी बन जाती है कि अब मैं इसको 0 1 की बेस पे एक्सेस नहीं करूंगा, मैं इसको किसी की बेस पे करूंगा। मैं कहूंगा कि ये है, इसकी तो मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दो, कि ये है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दो, और कि ये है तो ये वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दो। तो डिक्शनरी के अंदर जो है वो हम इंडेक्स की जगह की यूज करते हैं। की का मतलब ये है कि आई कैन से कि मुझे ना असद का रिकॉर्ड रिटर्न कर दो, और आई कैन से कि मुझे ना रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड रिटर्न कर दो। तो वो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो इंस्टेड कि मैं इसको 0 1 की बेस पे एक्सेस करूं, मैं इसको किसी एक की बेस पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर कीज होती हैं। ये थोड़ा सा इन स्लाइड्स में भी एक इशू नजर आया, वो ये कि की जो वैल्यूज होती हैं ये आपने याद रखना है, यूनिक होती हैं। दे कैन नॉट बी रिपीट देमसेल्फ। की डिक्शनरी के अंदर रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पे की 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, मे बी यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो ये जो कीज हैं वो दे शुड नॉट रिपीट देमसेल्फ। तो कीज क्योंकि वो अगर हम कहेंगे ना असर असर का कोई और रिकॉर्ड हुआ, तो वो फिर परेशान हो जाएगा कि ये मैंने ये वाला रिकॉर्ड शो करना है या वो वाला करना है। तो इसलिए कीज की वैल्यूज दोज शुड बी यूनिक। तो जब भी हम डिक्शनरी पाइथन में बताते हैं, जिस तरह हम लिस्ट बताते हैं तो वो यूज दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जब हम पाइथन में डिक्शनरीज का बताते हैं तो वो यूज दी करली ब्रैकेट्स। तो हम इधर इस तरह करली ब्रैकेट्स से यूज करते हैं, और जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं वो हम कोमा से ही सेपरेट करते हैं। और जो हम की वैल्यू है उसके बाद अब इसमें दो चीजें आएंगी। लिस्ट में तो हम डायरेक्ट लिख देते थे ना इस तरह 1 2 3, लेकिन अगर अब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक की और एक वैल्यू। तो पहली चीज को हम ऐसे बताएंगे कि, और दूसरी वैल्यू को हम उसके साथ कॉलन के साथ जो है ना वो सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे 1। तो इसका मतलब मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, और अगर मैं इसकी वैल्यू डी रख दूं तो इसका मतलब है वी आर क्रिएटिंग डिक्शनरी दैट इज स्टोरिंग वन सिंगल वैल्यू, and if I want to access that value, then I can use the key here. Like if I will write down d, इसके अंदर मैं लिख दूं की, तो ये मुझे ना 1 रिटर्न कर देगा। और इसी तरह जो है वो डिक्शनरी के अंदर आप मल्टीपल कीज रख सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो आप सेव कर सकते हैं। कीज की यूजुअली वैल्यू स्ट्रिंग्स होती हैं, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये शुड बी इम्यूटेबल। तो आमतौर पर जो कीज वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रिंग होती है। ये वाली वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, म्यूटेबल भी हो सकती है, म्यूटेबल भी हो सकती हैं। यहाँ पे वैल्यूज के अंदर इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इवन लिस्ट भी हो सकती हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। और कुछ दूसरे डाटा स्ट्रक्चर हैं जिस तरह टपल है, वो भी हो सकता है। तो कीज वैल्यूज जो हैं वो यूजुअली स्ट्रिंग होंगी, और जो कीज की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दैट विल बी that could be anything. That could be list, that could be integers, that could be strings, that could be maybe another type of data structure like tuples, etc. अच्छा जी, लेट्स से इसके बाद थोड़ी सी एक दो चीजें हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टोर विद इन दी आवर डिक्शनरी। तो हम इस तरह उसको लिख सकते हैं करली ब्रैकेट्स में, और फिर हम थ्रिलर जो है वो 1982 में, लेट्स से दीज आर द नेम ऑफ मूवीज और सॉन्ग्स। तो ये जो है वो 1982 में रिलीज हुई,
उसके बाद कोमा, फिर दूसरी मूवी का नाम और उसकी डेट कब, और अब इसमें दिस इज द की एंड इट इज द वैल्यू, और इसको हम ए को कहते हैं, इट इज कॉल्ड द की वैल्यू पेयर। इसी तरह here it is key and it is the value, and here it is called the key value pair। तो जो एक की वैल्यू पेयर है that is separated by the commas, जिस तरह लिस्ट के अंदर वैल्यूज को हम सेपरेट करते थे कॉमास के, लिस्ट में सिर्फ ये वाली वैल्यूज होती हैं, और कीज डिक्शनरी में जो है वो 7 कीज भी होती हैं। तो अब अगर हमारे पास ये डिक्शनरी हो, हमने बना ली हो डिक्शनरी और उसका नाम DICT डिक्शनरी रखा हो, तो अगर मैं उसमें थ्रिलर लिखूंगा, ये वाली की मेंशन करूंगा, तो इट विल गिव मी 9082। और आप देखिए लिस्ट के केस में मुझे क्या करना पड़ता, मुझे कहना पड़ता जीरो, कि जीरो इंडेक्स में जो मैंने मूवी रखी हुई है उसका मुझे रिलीज डेट बता दो, तो वो मुझे उस मूवी की रिलीज डेट बता देता। लेकिन उस केस में मसला ये था कि मुझे अब ये खुद से प्रोग्राम के अंदर या मुझे खुद से याद रखना पड़ना था कि व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऑफ द थ्रिलर मूवी। So in this case I am only mention the name of the movie and it is giving me the corresponding release date। So इसी तरह जो है वो आप कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दियर कोरस्पॉन्डिंग जो है वो की के थ्रू। So dictionaries are also immutable like the list। The values can be changed, like here we are updating the values of graduation movie and it is we are setting it 2007, it means that we can change the values of the dictionary as well। Similarly, we have seen how to delete values from the lists. In exact same way, we can delete values from the dictionary. We will mention the value name through the key and we use the del operator। इसी तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या जो है कोई खास मूवी या खास की डिक्शनरी में है, तो देन वी कैन राइट डाउन the name of the movie in dictionary, so it will find and it will return true if that corresponding movie exists within the keys of the dictionary। ये values में चेक नहीं करती ये स्टेटमेंट, ये सिर्फ कीज के अंदर चेक करती है। तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट जब हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं तो ये हमेशा इसका मतलब होता है ये वी आर टॉकिंग अबाउट दी कीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी वैल्यूज। लेकिन अगर आप वैल्यूज में करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। तो वो अब इसको वैल्यूज में चेक करने की कोशिश करेगी, जो एक्चुअली दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो उसके अंदर तो रिलीज डेट है। तो इस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसको मिल गया है। लेकिन हम स्टार बॉय इन डिक्शनरी करें तो स्टार बॉय इज नॉट इन अवर डिक्शनरी, सो इट विल रिटर्न अस दी फॉल्स, क्योंकि स्टार बॉय के नाम की कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इधर अगर हमें सारी कीज रिटर्न करनी हो तो वो एक लिस्ट की शक्ल में रिटर्न हो सकती है। हम डिक्शनरी डॉट कीज को यूज करते हैं तो इट विल रिटर्न अस द कंप्लीट सेट ऑफ कीज। और इसी तरह अगर हमें सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो वी कैन यूज डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है हमें रिटर्न करता है। तो डिक्शनरी इज वेरी वेरी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर, वी विल एक्सप्लोर इट मोर in details। Actually we will have to complete a simple programming project using the dictionary in the next course inshallah। So meanwhile you can sharpen your skills, you can be more equipped with the basic understanding of the dictionaries and list and slicing, cloning and other concepts that we have discussed today।